मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी संगत जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਦਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਰੂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਸੌਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਭਟਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆ ਘਰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਵਿਆਹੀ ਵੀ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਲਪਦੀ ਗਈ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਆ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭੂਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 5:30 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ 5:30 ਵੱਜਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਉੱਥੇ 5:30 ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ प्यारी बेटी मंदिर आना है तो फल लेके आना, बांटने आ। अच्छा जी, ले आवांगे। चलो मैं सोचदी सी भी केड़ा फल ले जावां। चलो मैं पहले पहुंच गई वहाँ। मैं फ्रूट केले ले, दर्जन ले ले। ते गुरु जी कहंदे सी 13-13। मैनू विश दे दित्ती ਸੀ 13-13। ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता 13-13 की है। चलो मैं केले लै गई, केले भी ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहते 13 ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਰੰਜ ਪਰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪੈਸੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 5:30 ਮੰਦਰ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ 5:45 ਵਜੇ ਖੁੱਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਆਹ ਨया ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋ। तो मैं नमस्कार करके संगत जी प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया ते चाह प्रसाद लिया, बाहर आके पीता, प्रसाद खादा, जल प्रसाद मैं घर ले आई। मन इन्ना खुश सी कि महाराज दा स्वरूप मैं भी ले जाऊं। संगत जी गुरु दी संगत नूं पुछया भी महाराज दा स्वरूप चाहिदा मैनूं, वो कहंदे अज नहीं मिलना, ब्लैसिंग कल नवे साल वाले दिन मिलेगी। मन फिर वही हो गया भी घरों मैं जानी कि दुखी होके आई सी, चल अज मन शांत है, घर जाऊंगी। चलो कोई गल नहीं, जिथे एक रात मैं रह लिया, गुरु जी सच जानियो मैं वो चलो मैं क्या मैं आ जाऊंगी, ठीक है। गुरु जी मैं घर आ गई इत्थे ते गुरु जी का मैनूं मैसेज आया नवे साल वाले दिन मंदिर आना। तो मैं कल्ली रह गई। मेरी बेटी भी मेरे नाल थोड़ा जिहा घट बोलदे सीगे, यानी कि जिन्हों कहते बच्चों ते काला मैजिक सीगा बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे भी, मेरे 2 बेटे एक बेटी है, बड़ा बेटा बड़ी बेटी छोटा बेटा। ते गुरु जी बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं। जो बड़ा वाला बेटा ते बेटी है ना, वो मेरे से नाराज होने लगे, मेरे से रूखा रूखा बोलने लगे। हाँ जी, मैं बहुत परेशान सी भी मैं कल्ली इन्हां नूं पालिया बड़े औखिया नाल, फिर भी मेरे ने इदा करते हैं। बेटे को मैं बाहर भेज दिया इटली, वो भी ऐसे ही भी मैं तो सुख देने के लिए भेजा, तो मेरे ना हो की रहा। चलो मैं क्या कोई गल नहीं, बच्चे स्टैंड होने चाहिए। ते गुरु महाराज मैं मंत्र जाप करती रही, फोन ते लगा लेना 108 बार जेड़ा मैं सुनती रहना, जिद्दां पागल नहीं हो जाती, मन लगता नहीं, बस गुरु जी दे मंत्र जाप ही सुनती रहना ते मैसेज पढ़ती रहना। ते मैं क्या मेरे कल्ली है किद्दां जावां। मैं ना बड़े हौसले नाल अपनी बेटी नूं पुछया, मैं कहा मंदिर जाना, कहंदी केड़े मंदिर, मैं कहा शिव जी मंदिर जाना, कहंदी चलो। मेरी प्यारी संगत जी
ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰਪਾ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹ ਲਈ, ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰੂਪ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੌੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੂੰ, अब रोने नहीं, तेरे रोने के दिन चले गए। जिसने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੈजिक ਕੀਤਾ ਨਾ, अब ਉਹ ਰੋएंगे। ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਸੁਣ ਲਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੀ ਸੀ। मेरे गुरु ने मेरी बाँह पकड़ ली। इतनी मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा प्यो है। सॉरी मैं इमोशनल हो गई। मेरे मम्मी पापा है नहीं ना, इसलिए सॉरी। हाँ जी, मैं कहनी मैनू है ना शुकराना सत्संग किद्दां कीता जावे। मैनू है ना इत्ते नंबर इहदे सत्संग सुनदी सीगी, ਇਹ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ WhatsApp ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿ ਹਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਲੰਘੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ बेटी आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम मटर पनीर बनाना। ओ गुरु पा जी ने मेरे को मटर पनीर मांगਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਵੇਲੀ ਮਟਰ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲੈ ਆਉਂਗੀ, ਵੀ ਚਲੋ 10 ਪੀਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋਗੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਨਾ ਚਾਬੀ ਚੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਟਰ ਵੀ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਗੀ। ਤੇ 5:30 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਆ ਅੱਗੇ। ਹਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈਆ ਮਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਸੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਟਰ ਕੱਢੇ, ਪਨੀਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਓ ਛਕੋ। ਤੇ ਲੈ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਮਤ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, 1:30-2 ਵੱਜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਬਦਲੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਬਦਲੋਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਥਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਥਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਥਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ सत्संग की तैयारी करांगी। मैं विराम करती हूँ। गुरु महाराज दे ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आ गई हूँ मैं आप सबके लिए बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ साथ संदेशे हैं खास आपके लिए। संगत जी सच में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त यहाँ पर गुरु जी के सत्संग को सुन रहे हैं। और ये सत्संग है, सच में सत्संग है। जैसे आप सत्संग में जाते हैं ना, शांत भाव से बैठते हैं, अपना टाइम वहाँ पे लगाते हैं कुछ पाने के लिए। और पाना क्या चाहते हैं? आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स अपने गुरु पा की। तो यहाँ से भी आपको वही तो मिल रहा है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, कर्म कट रहे हैं। और जैसा कि मैं एक संदेशा गुरु जी की तरफ से आप सबके लिए लेकर आती हूँ, आज भी है, बहुत प्यारा संदेशा है गुरु जी का, लेकिन वो संदेशा आज आपके पास पहुँच रहा है एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में। हाँ जी संगत जी, एक छोटी सी कहानी है, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, परेशानियां रहती हैं और हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो ये कहानी है आप सबके लिए एक संदेशा कि गुरु जी कैसे हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं। हमारा ईश्वर हर पल हर क्षण कैसे हमारे साथ होते हैं। तो संगत जी, एक आदमी होता है नौजवान और थोड़ा सा गुस्सैल होता है, वो गुस्सा ज़्यादा आता है। एक दिन वो सुबह सुबह उठता है और उठने के बाद उसको टिंग टोंग डोरबेल की आवाज़ आती है
वो दरवाज़ा खोलता है, सामने देखता है एक बहुत ही स्मार्ट सा आदमी खड़ा हुआ है। बहुत अच्छा सा उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी में है वो, काफ़ी बढ़िया। तो वो पूछता है, आप कौन? तो वो कहता है, अरे वाह, तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। मेरे मेरे कारण ही तुम सब कुछ बने हो, आज जहाँ पे तुम खड़े हो सब कुछ मैंने ही तो तुम्हें दिया है, और तुम आज मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। वो कहता है, क्यों, आप भगवान हैं क्या? वो कहता है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इतने में अंदर से उसकी माँ बुलाती है कि अरे, तू किससे आवाज़ मार रहा है? किससे आवाज़ मार मार के बातें कर रहा है इतना तेज तेज? और बाहर तो कोई भी नहीं है, किससे बात कर रहा है? अंदर आ। तो वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पे माँ को वो आदमी दिख क्यों नहीं रहा है। वो अंदर आता है, वो आदमी पीछे पीछे घर के अंदर आता आता है, वो सोफे पे बैठता है, तो वो आदमी भी बैठ जाता है, लेकिन माँ को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो आदमी कहता है, मैं सारा दिन तेरे साथ रहूँगा आज। और तो वो कहता है, अच्छा। तो अब माँ रोज़ के मुताबिक उसके लिए चाय लेके आती है। चाय तेज़ गर्म होती है, वो जैसे ही पीने लगता है और ज़ोर से चिल्लाता है, जैसे कि उसकी आदत थी। माँ ने चाय में थोड़ी चीनी तेज़ कर दी थी, तो इसलिए उसको लगा कि इतना तेज़ मीठा, चिल्लाया माँ के ऊपर। तो जब उसने देखा कि मेरे को सामने से वो आदमी देख रहा है, तो थोड़ा सहम गया। फिर माँ ने पूछा, क्या हुआ है? तो वो आदमी बोला, कोई कुछ नहीं, ठीक है, मैं पी लूँगा। चाय पी लेता है, ऑफिस के लिए तैयार होता है और देखता है गाड़ी में बैठता है जैसे ही, तो वो आदमी तो पहले से ही गाड़ी में बैठा होता है। अब गाड़ी में बैठा होता है तो वो जो है कहता है, चलो ये तो ऑफिस भी जा रहे हैं आज मेरे साथ। वो ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाने के बाद उसे जैसे कि आदत थी स्टाफ के ऊपर चिल्ला के बात करने की, लेकिन अब वो सोचता है हर टाइम तो ये आदमी मेरे साथ है, तो वो कभी कभार गाली भी दे देता था। तो फिर वो सावधान रहा कि कोई मुझे देख रहा है। तो ऑफिस में अपना सारा काम निपटा के और घर वापस आता है। रास्ते में फिर वो गाड़ी पे बैठते हैं, तो वो भी दूसरी सीट पे बैठ जाते हैं जो आदमी उनके साथ साथ होते हैं। तो वो कहता है कि चलो, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैंने सीट बेल्ट लगा ली, आप भी लगा लो, थोड़े नियम आप भी फॉलो करो। तो वो भी सीट बेल्ट लगा लेते हैं और घर आ जाते हैं। घर आते हैं, माँ ने अच्छा खाना तैयार कर रखा होता है, डिनर तैयार कर रखा होता है। तो वो कहती है, वो आदमी कहता है, अच्छा मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तो वो जाता है, बाथरूम जाने लगता है। तो वो आदमी भी पीछे पीछे कहता है कि हाथ जोड़ता है, भाई यहाँ तो बख्श दो। तो फिर वो फ्रेश होके आते हैं, डिनर की टेबल पे बैठ जाते हैं। माँ बढ़िया सा खाना लगा के थाली और अपने बेटे को देती है खाने के लिए। तो अब जब वो बैठा होता है खाने की टेबल पे, तो वो उसके दिल में आता है कि पहले वो जो आदमी साथ में है उससे कहे कि आप खाओ, क्योंकि उसको तो पता था अब तक कि तो भगवान जी हैं। तो वो कहता है कि पहले आप खाओ। तो भगवान जी पहला निवाला एक खा लेते हैं और उसके बाद फिर वो जो आदमी होता है सारा खाना खाता है। तो माँ उसकी बड़ी हैरान होती है कि क्या हुआ है, आज तो तूने इसमें कोई मीन मेक नहीं निकाला, ना तेरे को नमक कम लगा तो ना ज़्यादा लगा, रोज़ तो तू कुछ ना कुछ जरूर कहे बगैर खाता ही नहीं है। तो कहता है माँ से कि माँ, आज ये खाना नहीं, आज ये प्रसाद है, मैंने तो प्रसाद खाया है। तो माँ को कुछ समझ नहीं आता, और क्योंकि माँ को तो दिखाई नहीं दे रहा था वो, और सिर्फ बेटे को दिखाई दे रहा था। अब वो सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पे, और जैसे ही वो बिस्तर पे लेटता है तो रोज़ फ़ोन किताब कुछ ना कुछ वो लेके लेटता है। तो जो आदमी होते हैं, मतलब भगवान जी होते हैं, वो कहते हैं आज तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज मैं तेरे सर पे हाथ फेर रहा हूँ, तेरे को ऐसे ही अच्छे से नींद आ जाएगी, ना तेरे को फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, ना तेरे को कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो है सच में बहुत गहरी नींद में सो जाता है, और गहरी नींद में सोने के बाद सुबह ही उसकी आँख खुलती है, और माँ जब उसको आवाज़ मार देती है, अरे बेटा काफ़ी देर हो गई तो उठा नहीं। माँ की आवाज़ से वो चौंक के उठता है, तो देखता है कि अरे वो आदमी कहाँ है। फिर उसे याद आता है कि ये तो एक सपना था,
मैंने तो पूरी रात में ये जो देखा वो सपना है। हाँ जी संगत जी, वो सच में एक सपना था, लेकिन वो इतना दिल को झकझोरने वाला सपना था कि अब भगवान उसके हृदय में वास करते हैं और वो समझ गया है कि सच में ईश्वर हैं, कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, हर वक्त हमारी खबर रख रही है, हम किसी की नज़र में हैं। तो संगत जी, जब हम किसी की नज़र में हैं, कोई हर वक्त हमें देख रहा है, तो इसका मतलब हम में ही कोई कमी है जो हमारे मन में डाउट आता है, हम डरते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिंतन करने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रभु पे अथाह विश्वास कीजिए और जब भी सुबह से लेकर रात तक का जो भी रूटीन है उसको उसी ढंग से निभाइए कि किसी की दृष्टि हर समय हमारे ऊपर है, कोई है जो हमें देख रहा है। हम अपना कर्म अच्छे से करें, अपना 100% दें, है ना, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। अगर कोई सोचे सब कुछ भाग्य से मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता, है ना, और सब कुछ कर्म से मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। कर्म तो कितने लोग करते हैं, दोनों चीज़ चाहिए होती है। तो कर्म और भाग्य दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। इसीलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से जो हमारी नेगेटिविटी है वो दूर होगी और पॉजिटिविटी हमें मिलती है ना। सत्संग को शेयर कीजिए, सुनिए। जब पूरा पूरा सत्संग सुनेंगे आप तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से, 2 शेयर से हो सकता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी के पास पहुँचे और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, है ना। कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसको कौन सी बात झकझोर देती है, और जब वो झकझोर देती है तो हमारी ज़िंदगी में आते हैं पॉजिटिव परिवर्तन, है ना। कई लोग तो इतने ज़्यादा मायूस हो चुके होते हैं भी, है ना। मेरे पास रोज़ मैसेज भी आते हैं, सत्संग आते हैं आंटी के, काफ़ी सत्संग ऐसे होते हैं, काफ़ी लगता है कि काफ़ी डिप्रेशन में वो हैं, है ना, क्योंकि हर एक की जो तकलीफ़ होती है कहना बहुत आसान होता है, और सच में जब जो भी आंटी है या अंकल है, जो भी संगत परिवार है, जब वो स्टार्टिंग में गुरुजी के आने के बाद कुछ समय बाद तो ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया, पहले से हम बहुत बेटर हो गए हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ के कारण ही ज़्यादातर संगत गुरुजी के साथ जुड़ती हैं, है ना। तो आपने सुना भी होगा वो लाइन कि वो परेशानी भी भली जिसके कारण हम गुरुजी की संगत बन गए। तो सोचिए, जब कोई परेशानी जीवन में आ रही होती है जिसको फेस करना पड़ता है, तो सच में उस वक्त वो चीज़ असहनीय होती है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि विश्वास पूरा रखें, गुरुजी हैं और हमें देख रहे हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। कभी भी निराश मत होइए, बस केवल और केवल सिमरन करिए। कैसे कह दूँ तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं है मेरे प्यारे गुरुजी, तूने मुझे अपना बना लिया, ये तो मेरी औकात और उम्मीद से ज़्यादा है। जय गुरुजी। रूठी थी किस्मत मेरी, अब मेहरबान हो गई, गुरुजी के नाम से ही मेरी पहचान हो गई। थी राहों में मुश्किलें अनेक थी, पर अब सब राहें आसान हो गई। एक मुस्कान तू मुझे एक बार दे दे, ख्वाब में ही सही एक दीदार दे दे। बस एक बार कर ले तू आने का वादा, फिर उम्र भर का चाहे इंतज़ार दे दे। वही संभालेगा मेरे घर को हर मुसीबतों से, जो तेज बारिश में भी पेड़ से घोंसला गिरने नहीं देता। जय गुरु जी। संगत जी, सच में गुरुजी हर पल हम सबको संभाले हुए हैं, इसलिए परेशान मत होइए, क्योंकि परीक्षा तो होती है ना। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो परीक्षा तो होती ही है। बस विश्वास रखिए, कोई परेशानी आती है ना तो बस ये बात समझ के चलिए कि गुरुजी ने ये परीक्षा लेने के लिए जो परेशानी में हमें थोड़ा बहुत डाल भी दिया है ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से उस परेशानी से बाहर निकाल के और बहुत अच्छी सी चीज़ें हमको ब्लेस करने वाले हैं। परेशान मत होइए, है ना। और फिर बनेगा एक प्यारा सा सत्संग, है ना। जब सत्संग बनेगा तो आप सत्संग को भेजिएगा सुमन आंटी को,
गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर सारे संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए। हाँ जी संगत जी, आपका कोई सत्संग है, यानी कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो अपना अनुभव भेजिएगा। घटना का जो भी वर्णन है अच्छे से क्लियर वॉइस में सिंगल ऑडियो में भेज दीजिएगा 9548842997 पर, और कॉल मत कीजिएगा। मैं आपका सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा करूँगी, है ना। और गुरुजी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, हो सके तो मंत्र जप लिखिएगा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो अब सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग, जो आए हैं देश के कोने कोने से, और अब यहाँ से जा रहे हैं देश के कोने कोने तक और विदेशों में भी, है ना। तो संगत जी, ये आपके माध्यम से ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शेयर करेंगे तब, है ना। तो आप शेयर कीजिएगा और पहुँचाइएगा दूर दूर तक, और ये आपकी भी एक छोटी सी सेवा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम सत्संग जी, प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी को भी मेरा प्रणाम है, उनके चरण कमल में मेरा नतमस्तक है। मैं आज एक चमत्कारी और एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी हर वेले मेरे साथ होते हैं, हर क्षण वो मेरे पास होते हैं। मैं आपको बता ही नहीं सकती, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ चमत्कार किया है। और सबसे पहली बात ये है कि करंट ईयर में मेरी जो जॉब है वो मतलब हर साल मुझे इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने हमें अपनी चमत्कार से उसको सेव किया और फिर से मुझे वहाँ पर मतलब मौका मिला काम करने का, कार्यरत रहने का। एक तो ये मेरी ज़िंदगी में उनका पहला चमत्कार घटा था। वो मुझे तितली के रूप में आके दर्शन दे करके गए थे मेरे रूम में, और उसी दिन मैं समझ गई थी कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अभी मैं अपने मम्मी के यहाँ गई हुई थी और मैं मतलब सपने में देखती हूँ कि वो मुझे फिर से तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं, ब्लैक तितली के रूप में, बड़े से तितली के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिया। और वो मुझे कह रहे थे कि कुड़िए तुझे मतलब बहुत जल्दी एक बाबा से मुलाकात होगा, साधु के रूप में मैं मिलूंगा, मुझे पहचान लेना। मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो वहाँ पर एक साधु बाबा आए, और उन्होंने पीछे एक नाग सांप का ऐसे लगा के रखा था अपने गले में, और वो बोले कि मैं उज्जैन से आया हूँ, और सबसे वो पैसा ले रहे थे। वो मेरे पास और मेरे हाथों पे, मेरे सर पे अपना हाथ रखा, मेरे बच्चों के सर पे अपना हाथ रखा, और मैंने उनको 50 रुपया दिया। और मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने, पता नहीं वो जिस रूप में भी वो आए थे वो ही थे, वो बाबा ही थे, अगर मतलब वो गुरुजी ही थे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा। और मैं बिल्कुल उनको वो कुछ भी उनसे मैंने कुछ पूछा भी नहीं, और मुझे बहुत सुकून मिला उनसे मिलने के बाद में। और उसके बाद में मैं बस से मतलब निकली हुई थी जाने के लिए रायपुर के लिए, तो उस बस में अचानक से मैं देख रही हूँ कि ना खराबी आ गई, लेकिन उस बस का जो नंबर है उसमें 7 था, मतलब 777 थे उसमें। तो गुरुजी वहाँ पर भी मुझे एहसास दिला रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए, तू टेंशन मत ले। और उन्होंने मेरे सफ़र को कहीं पर भी नहीं अटकाया, गुरुजी के चमत्कार से वो सफ़र भी चल पड़ा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आते आते गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल में दर्शन के लिए खड़े थे। बहुत लेट हो रहा था, 8 बजे हमारी ट्रेन थी और हमारा लाइन भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बस एक बार मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बस मुझे जल्दी से दर्शन दिलवा दीजिए माँ की। तुरंत हम लोगों ने माँ कामाख्या का दर्शन किया और हम वहाँ से निकल पड़े। चमत्कार पे चमत्कार हमेशा हर वेले मेरे पास होते हैं, हर क्षण मेरे पास होते हैं मेरे प्यारे पिया, मेरे प्यारे पिता। हर हर मेरे पियो हर हर वक्त मेरे साथ होते हैं। कभी वो मुझे मतलब किसी रूप में, कभी वो मुझे किसी रूप में, मतलब कहीं ना कहीं मैं उनका मतलब दर्शन कर ही रही हूँ। और एक चमत्कार का बात यह है कि हम एक लॉज लिए थे। जैसे मैं एंटर करती हूँ मैं देखती हूँ कि एंट्रेंस में ही शिव जी का मंदिर है, हर जगह अपना साइन वो दिखा रहे हैं। मैं जब उन्हें याद कर रही हूँ कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन दे रहे। तितली तो मुझे अन्न मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जैसे उनको मन में स्मरण करती हूँ मुझे तितली दिख जाती है। मतलब वो हर वेले मेरे पास होते हैं मेरे पिताजी।
कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अब मैं कभी भी परेशान रहूँ, कुछ रहूँ, मैं बस उन्हें याद करती हूँ, वो चले आते हैं। बस और क्या बोलूँ। और इसी से मैं अपना ये जो शुक्राना और ये जो चमत्कारी सत्संग है, मैं इसको यहीं विराम देना चाहती हूँ और मैं उनके मंत्र जाप से इसका मैं समापन करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा मेरे पिताजी आप हमेशा यूं ही बना के रखना। मेरे घर वालों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर अपनी आशीर्वाद की हाथ बना के रखना। सब लोगों को आप अपना आशीर्वाद का ब्लेसिंग देना। और मेरी भाभी के ऊपर भी, भाभी के होने वाले आने वाले बच्चे के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरी सास के ऊपर, मेरे पति के ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर आपके आशीर्वाद का हाथ हमेशा यूं ही बना रहे। हमारे परिवार को आप यूं ही ऐसे मेहर करते रहे। मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे परिवार के साथ गुरु मंत्र के साथ, पावन गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सुमन आंटी जी, माफ़ करना सारी संगत परिवार जी। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट सुमन आंटी जी। मैं काफ़ी देर से गुरु जी से अरदास लगाई हुई थी कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना। तो मैं छत पर गई तो गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे पापा, क्योंकि मैंने एक सत्संग में एक आंटी से सुना था कि गुरु जी तितली रूप में बहुत कम दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी, सारी संगत और सुमन आंटी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। सुमन आंटी भी अपने परिवार को चलाती है, तो सोचो कि अगर सत्संग में कितना ही टाइम लगता है तो सुमन आंटी पढ़कर उसको सुनकर शेयर करती है। शुक्राना शुक्राना सुमन आंटी, आई लव यू, थैंक यू सुमन आंटी, गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और छोटी सी पंक्ति पेश करती हूँ। गुरां दे चरनां विच जगह मिल जावे, सवर गांधी लोड़ कोई ना, सवर गांधी लोड़ कोई ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी, शुक्राना सत्संग शुरू करने लगी हाँ। ये गुरु जी का वचन है कि अपना शुक्राना सत्संग शुक्राना कर। गुरु जी, मैं करती तो हाँ, पर मेरा शुक्राना शेयर नहीं होता, इसलिए फिर मेरा मन नहीं करता। मैं रोज़ ਤੁਹਾਡੇ संदेश सुनती हाँ गुरु जी। आपके संदेश सुन के मन को शांति मिलती है गुरु जी। मैं अपने भाई के लिए अरदास की सी और वो पूरी की है गुरु जी। मेरा भाई ठीक होके घर आ गया है। उसी टाइम में ICU चो बाहर आ गया सी जब मैं अरदास की सी गुरु जी। मैं दोबारा सत्संग करन लगी हाँ, मेरा सत्संग शेयर नहीं होया गुरु जी, इस करके मैं गुरु जी मैं रोज़ तितली ਦੇ दर्शन करती हाँ, जोत ਵਿੱਚ कदी फुੱਲ ਦੇ दर्शन करती हाँ गुरु जी। ਇਹ संगत जी, गुरु जी दर्शन ਦੀ बिल्कुल सच ਹੁੰਦਾ है, इनगौर ना किया करो गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी का शुक्राना, जो कुछ देता है उसके लिए भी, जो नहीं देता उसके लिए भी, सारिਆਂ ਦਾ शुक्राना गुरु जी, सारिਆਂ ਦਾ शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी का भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करते हैं। मेरा सत्संग शेयर जरूर करते हो। मैं बहुत सत्संग किए हैं, कोई शेयर नहीं होया, इसलिए मैं जो भी मैं मन चों गल कढ़दी हाँ मेरी, गुरु जी उसी वक्त पूरी कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि बच्ची तू शुक्राना किया कर,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਐਕਟਿਵਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈंने ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਔਰ जल भी मैं रोज पीती हूँ और मेरी दर्द हट गया गुरु जी। शुकराना ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। मेरी बेटी ਵੱਲੋਂ भी बहुत बहुत शुकराना, जवाई ਵੱਲੋਂ भी, मेरे भाई भाभी ਵੱਲੋਂ और ਭਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਹਨ, ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ 13 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਮ ਕਦੀ ਹਮਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ छोड़ना गुरु जी। हम पर भी ऐसी कृपा करिए जो हर टाइम आपका नाम लेते रहिए और हमारे मेरे मुँह चो हर टाइम कोई माड़ी बात ना निकले, अच्छा ही निकले, नाम शब्द ही निकले और ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, सब ਦਾ ही भला करिए गुरु जी। हमारे बच्चों की बुद्धि और गुस्सा क्रोध शांत कर दिए गुरु जी। हर बेटे प्यार ਨਾਲ ਰਹਿਣ। हमारियां बेटियां बहुआं ने हमारियां बेटियां हैं, उन्होंने ते भी मेरे ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। मैं अपना सत्संग ਇੱਥੇ विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर हो जाए गुरु जी। शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वाले का शुकराना सत्संग शेयर करने की जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ 7 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ 7ਵਾਂ ਸੰਧਿਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਧਿਆ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਪੇਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਹੁਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ गुरु जी। जय जय गुरु महाराज की जय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि 2025 ਵਿੱਚ तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जानी है, पैसों की सारी प्रॉब्लम तेरी खत्म हो जानी है। तो शुक्राना गुरु जी कि तू मेरी प्यारी धी है, तू इतना क्यों सोचती रहती है अपने बच्चों के बारे में। वैसे तो शुक्राना गुरु जी, तेरे बच्चों ने करोड़ों का मालिक बन जाना है। तो शुक्राना गुरु जी ऐसे मैसेज देने का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इस 2024 में दिसंबर में हमें 30 दिसंबर को अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। तो शुक्राना गुरु जी, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर जाके हम पूरी संगत के साथ गए थे। मैं पहली बार गई थी। तो शुक्राना गुरु जी, करोड़ों शुक्राना, आपने अपनी बेटी को अपने दरबार बुलाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं आज अपना जो शुक्राना सत्संग है, अपनी बहन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक दिन मेरी बहन जो रात को सोने लगी, तो अब उनको ये सत्संग शेयर करना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि तू कर देना। तो मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन रात को वो सोने लगे, तो उन्होंने ऐसे फ़ोन को अपने देखा, तो फ़ोन में उनके मैसेज आया था कि आज तेरे बेटे को ड्रीम में दर्शन दूंगा। और वो सुनकर पढ़कर वो सो गई। जब सो गई तो आधी रात को जैसे उनको एक सपना आया, उसमें वो क्या देखती हैं कि आसमान में ऊपर मोर उड़ता जा रहा है। बहुत बड़ा मोर है वो, जो आसमान में उड़ रहा है। तो वो खुद देखती हैं और जय गुरु जी बोलती हैं, और फिर वो अपने पोते को भी दिखाती हैं। उनका बेटे का बेटा होता है, उसको भी दिखाती हैं। वो छोटा है, उसको भी दिखाती हैं। उसको गोदी में उठा के उसको भी दर्शन करवाती हैं और जय गुरु जी बोलती हैं। और वो कह रही हैं कि पता नहीं कहाँ से इतनी आवाज़ें आती हैं जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। संगत जी, इतनी देर में वो क्या देखती हैं कि उन्हीं का अपना बेटा जो है, एक छोटी सी दीवार है उस पर बैठा होता है। इतनी देर में एक ट्रक आता है और उसके बीच में जाके बजता है, लगता है। जैसे ही वो ट्रक लगता है तो उसके बेटे का सिर जो है ट्रक की खिड़की में फंस जाता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती हैं। और वो घबरा के और वो जोर जोर से दरवाजे को पटक रही होती हैं, खिड़की को, कि किसी तरह वो रुक जाए और अपने बेटे का सिर बाहर निकाले। ड्राइवर देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। फिर किसी तरह वो खींच के अपने बेटे को बाहर निकालती हैं। जब वो देखती हैं कि उनके बेटे के गर्दन पे ब्लड तो निकल रहा होता है, लेकिन जरा सी झरीट आई होती है। तो ये बहुत बड़ा कोई कष्ट था उनके बेटे पे, जो गुरुजी ने उनके सपने में ही ये सारा कष्ट काट दिया उनके बेटे का। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। फिर उनकी नींद खुली तो एकदम बहुत घबरा गई। अगले दिन उन्होंने गुरुजी का बहुत सारा दिन बहुत शुक्राना किया। तो वो अपना ये सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने उनके बेटे का इतना बड़ा कोई कष्ट इतने छोटे में काट दिया और सपने में काट दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं। वो इतने बड़े बड़े संकट जो हैं वो कब छोटे में काट देते हैं, हमें नहीं पता चलता। मेरे साथ भी एक दिन ऐसे ही हुआ था। मुझे सपने में आया कि जैसे कि मेरे जैसे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और उसमें वो क्या था कि प्रॉब्लम थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर्स जैसे कहेंगे कि कैंसर है। लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ही एक वाइट कपड़ों में कोई कुछ बैठा होता है। डॉक्टर कहने को कहते हैं, सब कहते हैं ये डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे वो गुरुजी लग रहे थे। और वो फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही छोटा सा दाना था और इसमें पस थी, वो निकाल दी है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा भी पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो आपने वो काटा। शुक्राना गुरुजी, करोड़ों शुक्राना। आप अपने बच्चों के ऐसे सपने में कष्ट काट देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो शुक्राना, हम तो आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते। बच्चे कभी अपने माँ बाप का शुक्राना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी शुक्राना गुरुजी, करोड़ों शुक्राना। आपने जो है इतना बड़ा कष्ट काटा हमारा।
तो गुरुजी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, कहते हैं इनसे मांगो नहीं, इनको मानो। तो संगत जी, पर हमारी तो जो परेशानियाँ होती हैं हम तो इन्हीं से करते हैं। मैं तो उनको अपनी सारी परेशानी बताती हूँ, सारी बात करती हूँ। मेरी जो बच्चों को कोई मेरी परेशानियाँ हैं, कुछ भी है वो है। बाकी ये है कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे उनके लिए वही आप करना, जो हमारे लिए अच्छा करना लगे वही आप करना। गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरे साथ है, तू मेरी धी है। बहुत अच्छे आते हैं मैसेज, पढ़ के बहुत अच्छा है। मैं पहले संगत जी बहुत नेगेटिव रहती थी, लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती, बस यही होता है कि अपने आप गुरुजी देखेंगे, अपने आप ये बैठे हैं, ये करेंगे, अपने आप ये देखेंगे। गुरुजी मुझे बहुत तरह से बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन दिए गुरुजी ने, देते हैं। कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। 777 की बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी साथ जाते हैं, मेरे साथ मेरे घर आते हैं। रास्ते में मुझे बटरफ्लाई के बहुत दर्शन होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग आज यहीं विराम करना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप अपनी सारी संगत पे खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जो ये सत्संग शेयर करे उनको भी अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मतलब कि जो हम क्षमा याचना मांगते हैं गुरुपा, वो बोल देते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ब्रह्मांड में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, तितली रानी मधुमक्खी हैं, मक्खी है, और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पूर्वज गण हैं, पितरगण हैं आदरणीय, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, और ब्रह्मांड में जितनी भी मनुष्य जाति हैं, उन सभी से हम तहे दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं, क्षमा की भीख मांगते हैं कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को क्षमा कर दीजिए यदि हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से आपके साथ कोई पाप हुआ हो, आप सभी के साथ कोई अन्याय हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, या आप सभी के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ हो, तो उन सभी व्यवहारों के लिए और पाप के लिए हम अपने तरफ से गुरुपा और अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से क्षमा मांगते हैं, तहे दिल से क्षमा मांगते हैं प्रभु। सर झुकाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि अब हम पर कृपा करिए, हम हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे घर के सदस्यों पर कृपा करिए, हमारे घर के ऊपर कृपा करिए और कृपा दृष्टि करिए और बरकत का, सुख समृद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद दीजिए। और थैंक यू बोलना चाहेंगे आप सभी को, जिनके आप सभी के सपोर्ट से आज हम गुरुपा से कनेक्ट हो पा रहे हैं और भोलेनाथ से, महाशिव से कनेक्ट हो पा रहे हैं, महाकाल से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हम सभी के लिए। मतलब इस चीज़ को तो कोई कभी सोच ही नहीं सकता और हम तो सही में कभी नहीं सोचते थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना आप सभी का, अनंतम, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत थैंक यू। और आगे संगत जी, आपको तो हाय हेलो बोले ही नहीं। हेलो, हाय संगत जी, नमस्ते, जय गुरु जी। और सुमन आंटी को प्यार भरा जय गुरु जी। तो ये मेरा जो शुक्राना है, ये मेरे बेटे की तरफ से है अपने नाना को, है ना गुरुपा आपको, कि गुरुपा बहुत सारा सत्संग में सुनाए थे कि तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत भारी विपदा है, बहुत बड़ा संकट है। और इस तरह का वो एक मैसेज हमको सत्संग का नहीं दिखाएँ, बल्कि मेरे ख़्याल से गुरुपा 9-10
9-8 9-8 ज़रूर हो गया होगा गुरुपा। और बहुत दिन से सुना रहे हैं संगत जी हमको इस तरह का सत्संग, और इसके लिए हम शुकराना भी कर चुके थे गुरुपा को। 1 बार शायद या 2 बार करे हैं, है ना गुरुपा? 2 बार कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से अगर हम खोले थे अपना मतलब कि सत्संग सुनने के लिए, तो उसमें हमको मैसेज दिए हैं गुरुपा कि फिर से बेटे का ही कष्ट का दिए थे और सत्संग सुना रहे थे। और उसमें संगत जी बोल रहे थे कि मैं मतलब संगत भाई बोल रहे थे कि मैं ऑफ़िस से भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरे बेटे का तबीयत ख़राब था, उसको थ्रोट में इन्फेक्शन था, सर्दी-खाँसी था, फ़ीवर भी था, इस तरह का बोल रहे थे संगत जी। और रियल में ओरिजिनल में मतलब मेरे घर में भी यही चल रहा था, कुछ दिन से मेरे बेटे का तबीयत ख़राब था, उसको सर्दी-खाँसी था और उसके गले में भी इन्फेक्शन था, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं खसखसाहट टाइप का, उस टाइप का उसके गले में भी था संगत जी। और कुछ दिन से ही था, और वो तो पहले तो बिल्कुल भी हम लोग का मतलब अपनी गार्जियन का बात बिल्कुल नहीं सुनता था, बल्कि उल्टा जवाब ही दे देता था कि तुम्हें क्या मतलब, अपना काम करो। है ना गुरुपा? लेकिन गुरुपा बहुत अच्छा उसका व्यवहार कर दिए, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना पहले इस बात के लिए गुरुपा कि आप उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा कर लिए हम लोग की तरफ, बहुत डिसेंट कर दिए, बहुत सही से वो बात करने लगा है गुरुपा। और जैसे कि एक माता या पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा उससे बात करे, उस तरह से वो बात करता है और बहस नहीं करता और हम लोग की बात सुनता है गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत खुश हैं गुरुपा। और दूसरा शुक्राना भी बेटे का ही है कि आप तबीयत का उसका सुना-सुना कर कितना सारा सत्संग में हमको गुरुपा उसका इतना बड़ा कष्ट काटे, जो कि अब 1-2 सत्संग में ये भी बोले थे, मतलब मैसेज के द्वारा संगत जी लोग बोल रहे थे कि जान का खतरा है, बहुत बड़ा संकट है, एक्सीडेंट का भी खतरा बोल रहे थे संगत जी कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट का भी खतरा है, क्योंकि वो सही बात है, बहुत फास्ट ड्राइव करता है। चाहे वो स्कूटी चलाए अपना एक्टिवा या फिर गाड़ी चलाए, वो अपने आप को बहुत उस्ताद समझता है, सोचता है कि बुरा नहीं कर रहे हैं गुरुपा। लेकिन जैसा है वैसा बता रहे हैं। सही में ऐसा ही है वो, मतलब किसी का जल्दी सुनता नहीं है। अगर उसके पापा साथ में उसके चल रहे हैं और हम पीछे बैठे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके पापा उसको कहीं-कहीं बता रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, बेटा इस तरह से नहीं चलाओ, इस तरह चलाओ या स्पीड इतना करो। जो भी है, जैसे ट्रक-व्रक आ जाता है तो बीच से निकालना पड़ता है गाड़ी को। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं निकालूँ कि मतलब हम निकालें कि पीछे से रुक जाएँ, थोड़ा बैक हो जाएँ, इस तरह से वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो भगवान देखिए संगत जी, भगवान तो हर समय रक्षा कर ही रहे हैं गुरुपा, लेकिन अगर दिमाग आदमी का कन्फ्यूज़ हो जाए तो पता नहीं चलता है कि गाड़ी आगे बढ़ाना है कि गाड़ी पीछे बढ़ाना है। तो उसके साथ ऐसा बहुत बार हुआ, ये एक हम भी थे एक टाइम में जब हम अपने भाई के पास जा रहे थे, तो हम ये साक्षात खुद देखे। तो संगत जी एक्सीडेंट का खतरा भी उसका दिखाए थे हमको गुरुपा, सत्संग में सुनवाकर कि एक्सीडेंट का भी खतरा है, जान जाने का भी खतरा है। तो वो दोनों चीज़ उसका कट गया है संगत जी, क्योंकि ये जो थोड़ा-सा कष्ट जो सर्दी-खाँसी और जो थ्रोट इन्फेक्शन दिए उसके चलते वो बड़ा कष्ट गुरुपा काट दिए। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा। हाँ, आपको बता नहीं सकते हैं गुरुपा, मतलब कि कितना बड़ा टेंशन, कितना बड़ा संकट, मतलब कि कितना बड़ा बोझ लगता था जब वो हम लोग की बात नहीं सुनता और अपने मन से वो ड्राइव करता या एक्टिवा बाहर ले जाता। तो आप उसके साथ हर समय हैं, ये निश्चिंत होकर अपने दिमाग में हम बैठा चुके हैं गुरुपा। और आप हैं तो हमको क्या सोचना है गुरुपा, हम तो बेफ़िक्र रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि आप हैं उसके साथ हर पल हैं। और संगत जी गुरुपा हमको बहुत सारा मैसेज में ये भी बताए हैं सत्संग में सुनवाकर कि मैं उसका नाना हूँ और मैं हर पल उसके साथ हूँ, और अगर उसे कभी भी किसी चीज़ में कोई कठिनाई या मुश्किल हो या ज़रूरत महसूस हो किसी का, तो मैं उसके सामने रहूँगा। इस तरह से गुरुपा हमको सुनवाए बहुत सारा सत्संग में, तो थैंक यू गुरुपा। आप उस समय भी उसके साथ रहते हैं जिस समय हम पहुँच नहीं पाते हैं या उस समय वो अकेला फ़ील करता है। तो बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। आप तो हमको खुशी कर देते हैं गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। अगर आप हाथ थामते नहीं, हमारे सर पे अपना हाथ नहीं रखते, तो पता नहीं सही में संगत जी, पता नहीं इस फैमिली का क्या होता, भगवान जाने मतलब गुरुपा जाने। और एक और शुक्राना है मेरा संगत जी,
वो भी आज का ही है। बेटे का तो कई दिन से चल रहा था, 15-20 दिन से, 15 दिन से है ना गुरुपा, लगता है ज़्यादा बोल दिए। 15 दिन से जैसा चल रहा था उसका। लेकिन एक शुकराना मेरा अपनी तरफ से है गुरुपा को, गुरुपा के चरणों में, कि आज हमको गुरुपा बुधवार को एक उपाय करने के लिए बोले थे कि गाय को पालक खिलाना है और रोटी में गुड़ डालकर खिलाना है। तो हम तो जिस समय फ्रेश नहीं हो पाए थे, जिस समय नाइटी में ही थे, तो उस समय गाय दिखी तो हम तो बेसब्रे हैं। गुरुपा जानते हैं। हम बिल्कुल सब्र नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तो जैसे कि हम गाय माता को देखे संगत जी, तो हम दौड़ के गए अपने हस्बैंड अंकल के पास और फ्रिज से निकाल के उसका गाय माता का, सॉरी गाय माता, उनका गाय माता का ये रोटी और गुड़ निकाले और उसमें कुछ-कुछ और भी था, वो प्लास्टिक में अच्छा से रखे थे, पैक करके वो निकाले और पालक भी निकाले और उनको हस्बैंड अंकल को दे दिए। और वो भी उस समय फ्रेश ही हो रहे थे, मतलब पूरा अप टू डेट आउटफिट पूरा नहीं पहने थे, मतलब अंदर का जो वूलेन्स का रहता है ऊपर-नीचे वाला वो पहने हुए थे। फिर भी वो बेचारे मेरा बात सुन के गए नीचे और देने के लिए गए जिस गाय को, वो गाय हमारे एंट्री, नीचे वाले एंट्री में थी। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर की एंट्री में थी, वो चली गई जब तक वो गए। पहुँचते-पहुँचते उनके, और जो दूसरी गाय थी वो बिल्कुल आगे थी थोड़ा, मतलब एंट्री गेट के आगे थी और वो कचड़ा खा रही थी। तो जो कचड़ा खाते रहेगी वो थोड़ी ना लेगी, बताइए संगत जी। लेकिन फिर भी ये गए और उसको बहुत बोले, "आह! आह! ले, ले" इस तरह से। लेकिन वो कचड़ा खाने में ही लगी हुई थी, है ना गुरुपा। फिर क्या हुआ कि वो वहीं पे घुसा के रख दिए, ले करके आगे अपने, और वो कचरा खा ही रही थी। फिर हम ये ऊपर आ गए और हमको थोड़ा अनडिसर्न, मतलब यही कि क्यों भेजी तुम? एक तो हम ऐसे ड्रेस में थे, हमको क्यों भेजी? वो खाई भी नहीं, वो कचड़ा खा रही थी। बाद में भी गाय आ सकती थी, हम अप टू डेट होके अपना आउटफिट सारा पहन के ड्रेसिंग-व्रेसिंग करके रेडी-सेडी होके निकलते हैं, मतलब तुम क्यों भेजी झूठ-मूठ का? इस तरह से हमको सुनाने लगे, तो हम बोले सही बात है, क्यों भेजे? खाई भी नहीं। और फिर उनको सॉरी भी करें और ये भी बोले कि हाँ, इट्स माय मिस्टेक। सही बोल रहे हैं आप। और फिर कुछ देर बाद हम किचन में अपने चले गए, मतलब ऐसा होने के बाद, और अपना काम करने लगे, जो भी काम-धाम है अपना। और 10-15 मिनट बाद भी फिर आए मेरे पास, बोले, "सुनो, सुनो, सुनो।" बोले, "क्या हुआ?" तो हम गए बाहर, जहाँ रेलिंग है हम लोग का बालकनी का, वहाँ गए तो देखे चारों तरफ गाय। सही में संगत जी, हम तो आश्चर्य हो गए, एकदम चमत्कार दिखाते हैं गुरुपा। एक दाएँ में बैठी है, एक बाएँ में, एक उत्तर में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, इस तरह से मतलब 4 गाय बैठी थी चारों दिशा में। और मेरे घर के एंट्री के नीचे ग्राउंड फ्लोर के बिल्कुल सामने। तो बताइए संगत जी, ये चमत्कार तो गुरुपा ही कर सकते हैं। गुरुपा जब देखें कि इसको गाय को पालक खिलाना है या जो हम उपाय बताएँ वो करना है, तो चारों तरफ गाय भेज दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा चमत्कार दिखाते रहते हैं गुरुपा। कल भी आप चमत्कार दिखाएँ, गाड़ी वाला वो तो हम बताए थे संगत जी, और आज भी चमत्कार दिखाएँ। थैंक यू गुरुपा। हमको चमत्कार देखना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा, बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और एक और शुक्राना बोलना चाहेंगे संगत जी लोग के लिए, जो भी संगत भाई-बहन बोलते हैं, हम लोग को कुछ भी बताते हैं, वो सब जो अपना पूरा अनुभव बताते हैं, उन सभी संगत भाई-बहनों को हम कभी भी शुकराना नहीं कर रहे हैं, गुरुपा, मतलब संगत जी। तो आज हम सभी संगत भाइयों को, सभी संगत बहनों को अपनी तरफ से अनंतम शुक्राना बोलते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं, जो आपके साथ बीतता है, उस चीज़ को आप अपने शब्दों में शेयर करते हैं, ताकि हम घरेलू भाषा में उसको समझ पाएँ और उससे कुछ मदद मिल पाए। तो बहुत-बहुत शुकराना आप सभी संगत बहनों का और सभी संगत भाइयों का, और ख़ासकर का शुकराना सुमन आंटी का, प्यारी सुमन आंटी का, जो इतना प्यारा कीमती समय अपना निकालती हैं और हम लोग के मतलब कि मैसेज को इधर से उधर करने में, डाउनलोड करने में, शेयर करने में अपना पूरा योगदान देती हैं, पूरा एफर्ट लगा देती हैं, अपना पूरा 100% लगा देती हैं। बहुत स्वीट आवाज़ है आपका, बहुत समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है सुमन आंटी। अ, आई एप्रिशिएट योर वॉइस,
और आपका जो तरीका है बहुत ही बढ़िया है। आपको अनंतम शुक्राना सुमन आंटी। और आगे हम गुरुपा का दिव्य महामंत्र बोलेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और आगे बोलना चाहेंगे संगत जी आपको। मेरे साथ जो आप सुन रही हैं मेरा इतना सारा ये तो इसके लिए भी आपको अनंतम शुक्राना। और अनंतम शुक्राना आपको, और आपको भगवान मतलब गुरुपा चारों तरफ से आशीर्वाद दे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से आप पर कृपा की बारिश करें। और सुमन आंटी को भी चारों तरफ से कृपा की बारिश करे भगवान, उनके घर भी मंगल कार्य हो और उनका हर कार्य जिनका उनको इंतजार है सब पूरा हो। और आगे आपके बारे में बोलते हैं गुरुपा कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं गुरुपा, उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, दिल से अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कल मैं शुक्राना सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पा रही थी, लेकिन रात को सोते सोते मैं सुन रही थी और शायद उससे पहले ही सुना था। वायरल मैंने कर दिया था अपना शुक्राना सत्संग, लेकिन सुन नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर भी उसमें सुना था कि जैसे वो मंत्र जाप करने के लिए सुबह और शाम करना है, अमृत वेला में और संध्या वेला में अपने बच्चे के लिए, मतलब जैसे कोई आंटी बता रहे थे। तो गुरुपा दया करेंगे। अब मन में तो आता ही है कि हम डेली करती हूँ मैं, वैसे तो यूट्यूब पर मैं मंत्र जाप भी और जपजी साहब का पाठ भी और चौपाई साहब भी चला देती हूँ। और कल फिर मूड इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जैसे मैं प्रे कर रही थी तो आके बोलते बस तुम पूजा पाठ में ही लगी रहती हो। संगत जी क्या करूं मैं ये नहीं कह रही कि थोड़ा समय मैनेजमेंट हो जाता है, कई बार बेकार भी हो जाता है, कई बार सही भी रहता है, लेकिन फिर भी अब पूजा पाठ तो होता और होना भी तो चाहिए ना। 15 मिनट के लिए शाम को होती है, 15 मिनट के लिए सुबह भी हो, जो भी हो। खैर ये थोड़ा भड़क गए थे तो मैं इसलिए थोड़ा सा चुप ही रह गई, मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। लेकिन रात को सोते हुए सुना तो और आज देखिए, आज मेरी नींद अपने आप ही 3:30 के अराउंड खुली हुई होगी। बस फिर मैंने थोड़ा मुँह हाथ धो के पानी पी के फिर मैंने भी बैठे बैठे गुरुपा को याद ही करी थी, मन थोड़ा सा उलझा रहता है, तो मैंने भी मंत्र जाप कर लिया था। शुक्राना 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 गुरुपा कि मैंने मंत्र जाप सुबह 108 बार कर लिया था। फिर राधा चालीसा भी सोते सोते ही कर रही थी, फिर नींद आ गई तो सो गई थी। और एक अभी आते हुए अपनी जैसे क्लास से लौट रही होती हूँ, तो मैंने सुना कि वो आंटी जी जो मैसेज दे रही थी कि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी तकलीफ थी जो गुरुपा ने टाल दी क्योंकि तुम शुक्राना करती हो। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना, अच्छा सच्चा इंसान बनाने का शुक्राना, अच्छे सच्चे मार्ग पर चलाने का शुक्राना। और दिल से दिल से दिल से गुरुपा पापा जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मामा पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और भी जो फैमिलीज दीदी उनकी हैं, हम जो और भी जो भी हमारे परिवार वाले हैं, उन सबकी ओर से दिल से अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना नानू, लक्ष लक्ष शुक्राना, दिल से शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी सच में शुक्राना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। वाहिगुरु जी दया करिएगा, वाहिगुरु जी दिल से निकलता रहे बस मन कई बार ये। और आज मन को बहुत अच्छा लगा मंत्र जाप करके। मंत्र जाप यूट्यूब पे सुनते हैं तो भी ठीक है, लेकिन खुद भी करने का एक अच्छा ही वो होता है। और एक और प्रार्थना कर रही हूँ गुरुपा, दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि दिन में कभी भी खाली ना रहे, मतलब मन जैसे फिर ना बेकार उलझनों में फंसने चला जाता है, तुरंत से आप अपना नाम जपा देना, कुछ भी नाम जपे, हम कोई भी नाम जपे। वाहिगुरु जी धन धन गुरु नानक, वाहिगुरु जी का है धन धन गुरु नानक है, जो भी आपको मंत्र जप आपको मन में देने हैं ना, सब 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 तो आपके ही नाम है ना। तो बस तुरंत से मन को बोलिए कि मतलब एक होता ना कि बस कि मन इधर उधर ना भटके, तुरंत से नाम जाप में शुरू शुरू नाम जाप में लग जाए। चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी अपना, खैर काम करते करते भी नाम जप कर लेते हैं,
तो दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो भी तकलीफ आपने टाली है बस सहाय रहिएगा, सहाय रहेगा गुरुपा। एक अरदास और लगा रही हूँ, वैसे तो मैं कर चुकी हूँ, आप हमेशा जाने जाना जितने भी ब्लैक मैजिक से, जितनी भी परेशानियों से आपने हाथ पकड़ कर बाहर निकाला ना गुरुपा, दिल से शुक्राना करती हूँ, याद भी करती हूँ ना संगत जी। तो कई बार एक अजीब सा होता है कि नहीं नहीं अभी मतलब शुक्राना, दिल से शुक्राना करती रहूँ। मैं यहाँ पर सेल्फिश नहीं हो रही हूँ कि मुझे याद, लेकिन मन बड़ा कांप सा जाता है कि जो भी है गुरुपा, कुछ अपने भी कर्म रहे होंगे, आपने कर्म काटे भी हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। बस दया कर दीजिए, आप जानिए जाने, सदा सहाय रहिएगा, सदा सहाय रहिएगा, सदा सहाय रहिएगा। अंकल जी का जिस काम के लिए एक वो इन्होंने टेंडर मतलब जो था एक डाल रखा है, उसका जो भी रिस्पॉन्स आए गुरुपा दया करिएगा। कामकाज है नहीं अभी, जो भी थोड़ा बहुत है उसी के है, बाकी आप दया करिएगा जो भी टेंडर डाला हुआ है। और मेरे छोटे भाई पर भी कृपा कर दो गुरुपा, उसके कामकाज पर दया कर दीजिए प्लीज, जो भी मैंने तो हमेशा यही कृपा मांगी है कि जो सहाय रहेगा, मैं कोई जबरदस्त वो नहीं रहता हमें कोई किसी भी चीज का, लेकिन जब आपको कृपा हो कि एक जैसे कहते हैं ना कि बस काम होगा तो मन भी लगा रहता है ना गुरुपा, सहाय रहेगा, सहाय रहेगा, सहाय रहेगा। और दिल से क्षमा मांगती हूँ। खैर बटरफ्लाई के तो मुझे कोई दर्शन नहीं हुए, और आज पीकॉक सोचा था लेकिन पीकॉक नहीं दिखा। कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुपा, जो भी आप सहाय रहते हैं। दिन में बहुत सत्संग होते रहते हैं संगत जी, बहुत सत्संग होते रहते हैं, लेकिन कई बार ना मन, कई बार याद भी नहीं आता, या कई बार हम भूल जाते हैं। फिर भी दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर एक चीज के लिए जो आपने रहमो करम दिए हुई है, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सब 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 पर बनाए रखेगा। अपनी साथ संगत के सदा सहाय हैं, सदा सहाय रहिएगा। आपका आशीर्वाद का हाथ सदा है और बनाए रखेगा हम सब पर, साथ संगत पर, साथ संगत के परिवारों पर, और जो भी हमारा ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। दिल से प्रार्थना कर रही हूँ। और अनंतम शुक्राना फिर एक बार और दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना कर रही हूँ, और जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सच में सच में सच में शुक्राना है गुरुपा, बहुत 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 कृपा है संगत जी, हम सब पर बहुत दया है। जब हम देखते हैं ना कि जो भी हो उन पर भी, मैं तो कहती हूँ सब पर अपनी दया कर दीजिए। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, कहते हैं ना गुरुपा कि राम जी का मुख देखते ही मतलब सब तरफ एक खुशियां खुशियां बनी रहे, बस ऐसे ही अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बना रखेगा संगत जी गुरुपा। कोई भी त्रुटि हो गई होगी शब्दों की तो दिल से क्षमा मांगती हूँ, और अपना शुक्राना सत्संग, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से, जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज देहरादून में आई हूँ, और मैं देहरादून में ही अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ, और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं आरंभ करती हूँ। गुरुपा जो है वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, और गुरुपा जब मैं देहरादून आ रही थी तो रास्ते में जो है मैं कहीं पर एक जो है ये जो हमारी ओला थी, वो गाड़ी थी जो वो रुकी, तो वहाँ पर हमें मुझे बटरफ्लाई जो है वो दिखाई दी, और बटरफ्लाई जो है वो ऐसे मेरे पास ही वाइट कलर की बटरफ्लाई वहीं पर सामने घूम रही थी, जबकि काफ़ी ठंडा था, लेकिन फिर भी बटरफ्लाई दिखी तो मैं जय गुरु जी बोली, और गुरु जी मेरे अंग संग ही थे। यस, मुझे गुरुपा ने एहसास कराया, जबकि मुझे खुद फील होता है कि गुरुपा मेरे अंग संग हमेशा है। तो गुरुपा जब मैं यहाँ आई तो मुझे देहरादून में था, तो मेरे पास जो है टू व्हीलर है, तो मैं टू व्हीलर जो रखा था वो उस पर
जो वो काफ़ी साल टाइम से ऐसे ही बंद बंद पड़ा है। तो उसकी बैटरी जैसे मैं नहीं आई तो साल भर वो है मैं एक ही बार में जब आती हूँ तभी चलाती हूँ। तो वो ऐसी मेरा जो स्कूटी थी वो ऐसे ही रखी थी। तो मुझे मेरी सिस्टर लोगों ने बोला कि मतलब उस दिन दिल्ली में मेरी सिस्टर ने बोला कि अगर तुम 2-4 दिन के लिए बैटरी डलाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बैटरी जो है फिर जाम हो जाती है ठंड की वज़ह से। तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 दिन है तो आप मैं रहने देती हूँ। तो मैंने नहीं उसमें बैटरी डाली और मैं ऐसे ही मतलब कुछ ऑटो लेके अपना काम कर रहे थे हम। मेरी मम्मा और मैं शॉपिंग के लिए भी गए तो भी हम ऐसे ही गए। तो कल भी मुझे डॉक्टर पे मुझे ध्यान आया कि मुझे बैंक में जाना था, फिर उसके बाद डॉक्टर पे जाना था। तो डॉक्टर पे जाने के लिए जैसे मैं सोची तो मैं सोच रही थी डॉक्टर पे जाऊँगी, तो उसके लिए मतलब टू व्हीलर के बिना मुश्किल होता है, ऑटो कहीं-कहीं जगह पे नहीं जाते और मेरे पास टाइम का भी शॉर्टेज है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, ये काश मेरी मतलब मैं गाड़ी पे चल जाती तो मुझे अच्छा था, तो मुझे ईज़ी होता। लेकिन मैंने फिर यही सोचकर रुक गई कि बैटरी ऐसे ही पड़ी रहेगी, मैं चली जाऊँगी तो वो फिर जाम हो जाएगी दोबारा और मम्मा को तो चलाना नहीं आता, तो वो ऐसे ही रखी रहेगी। फिर मैंने सोचकर छोड़ दिया और फिर सोचा डॉक्टर को नहीं दिखाती और डॉक्टर को दिल्ली में दिखा दूँगी। लेकिन दिल्ली में जो है दूसरे टेस्ट मुझे करवाने हैं, क्योंकि मैं हर साल अपना रूटीन चेकअप कराती हूँ। तो मैंने ऐसे सोच ही रही थी, अभी पड़ोस में एक आंटी हैं और उनके पास जो है स्कूटी है, तो उनके हस्बैंड की, तो वो बोलने लगे कि आप हमारी स्कूटी ले जाओ और जो है अपना काम कर सकते हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आए और बोले तुम्हें जब भी चाहिए तो मुझे भी जितने भी चाहिए अपने पास आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे और उनकी नई स्कूटी थी और मैंने गुरुपा का अंतिम शुक्राना किया कि मैंने तो अंदर सोचा था गुरुपा का थी, तो उन्होंने एकदम बोल दिया और उन्होंने अपनी स्कूटी मेरे को दी और मैं फिर उनकी स्कूटी लेकर मैंने अपने सारे काम कर लिए और मैं डॉक्टर के पास भी जो मुझे अपने कान दिखाने थे वो भी मैं दिखा आई। डॉक्टर भी एकदम जैसे मैं डॉक्टर के पास गई मुझे लगा कि अब लास्ट मोमेंट में था, लंच आवर्स था, शायद डॉक्टर बंद हो जाएगा, लेकिन और मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था, तो मैं इमीडिएटली गई। लेकिन जैसे मैं गई तो डॉक्टर एकदम खाली थे और मेरा फर्स्ट नंबर ही आ गया और मैं जाते ही डॉक्टर को दिखा दिया। मतलब विदिन 5 मिनट्स डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके मेरे कान का उन्होंने मुझे दिखाया। कान के अंदर जो है वो भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गुरुपा की कृपा से कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं थी। लेकिन मैंने ड्राइनेस होने से स्क्रैच मैंने कर दिया था, काफ़ी खुजली करने से वो थोड़ा-सा कॉर्नर पे थोड़ा-सा हो थोड़ा-सा रेड और उस पर मतलब थोड़ा-सा जो हल्का-सा हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन वगैरह भी दिया और बोला कि ऐसे 5 दिन ये लगाओ और फिर दिखाना और ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं 5 दिन तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा आप ये मेडिसिन लगाओ एकदम ये एक खाओ तो एकदम ठीक हो जाएगा। इसलिए विदिन 5-10 मिनट्स में मेरा काम हो गया और मैं जो है फिर मैं बैंक गई। बैंक में भी जो बैंक के ब्रांच मैनेजर है वो ऐसा मतलब इतनी अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीट किया और बोले कि तो आप तो हांगकांग रहते हो, तो हम हांगकांग आएंगे घूमने के लिए। और मैंने बोला मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं, आप मेरा नंबर नोट ले कर लें। तो उन्होंने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर मुझसे शेयर किया और उन्होंने हमारे काफ़ी काम थे जो कि उन्होंने बड़े ही आसानी से कर दिए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इस तरह से गुरुपा ऐसा लगता है हर जगह गुरुपा आ गए हैं, तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुपा ने की कृपा इस दृष्टि इस तरह बनती रही। उसके बाद मैं सैलून में गई, कुछ मुझे हेयर ट्रीटमेंट करना था, तो वो जो सैलून वाले भैया थे वो उनके पास पहले भी आई थी, उन्होंने रात को 10 बजे तक मुझे कुछ करवाना था, तो वो मेरे लिए क्योंकि मैं लेट गई तो उन्होंने मेरी रात को 10 बजे मेरा अच्छी तरह से मेरा जो मैंने काम करवाना था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया। इवन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हेड में मसाज करी और बहुत ही मुझे अच्छा फ़ील हुआ। तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा हर जगह मेरे को मतलब अच्छे से उन्होंने ऐसे मतलब टाइम पास नहीं करा। पैसे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि जो आप चाहो आप दे दो। लेकिन मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। ऑफ़ कोर्स मैंने उनकी मेहनत
के से ज़्यादा ही उनको दिया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अगले बंदे ने डिमांड नहीं की, जबकि सैलून में ऐसा कोई नहीं बोलता कि जो आप चाहो तो वो दे दो। तो मुझे बहुत ही शुक्राना है गुरुपा आपका। आपने हर जगह मुझे जो है अपने होने का एहसास दिलाया। मुझे हर इंसान में आप दिखाई दिए। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। आई लव यू गुरुपा। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं। मैं जब गाड़ी में गई तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई और मैं इजीली आ गई और मुझे हर काम मेरे 2-2 मिनट में बनते गए और मैंने सारे काम पूरे कर लिए। आज मैं वापस जब भी मतलब जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा गुरुपा जो है वो अ, हमेशा इंडिया में भी मेरे साथ थे और हांगकांग में भी मेरे साथ हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। और मुझे देहरादून में सत्संग कहाँ पर होते हैं वो भी सुमन आंटी के द्वारा पता चला। उन्होंने बताया तो मैं उनका भी अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने वो बहुत ही अच्छी इंसान है। कृपा आप उनको बहुत 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 ब्लेस करें। उनके साथ तो ऐसा लगता है कि साक्षात आप ही हैं। तो कृपा आप सुमन जी और उनके परिवार पर अपनी अनंतम अनंतम कृपा बरसाए रखें और उन्हें जो हर तरह से ब्लेस करें हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से और उन अपनी सेवा जो कर रही हैं उनको सेवा में और हिम्मत बख्शे। तो कृपा आपका अंतिम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। गुरुपा की मेहर तो इस सत्संग में मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी। फिर कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए उनके महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा माता रानी के रूप में माता मंदिर में मेरे साथ थे। मैं मंदिर में जाकर जब मैंने पूजा की तो मुझे ऐसा लगा गुरुपा मेरे साथ ही खड़े हैं और माता रानी के दर्शन जब मैंने किए शिवलिंग में जब मैं जल अर्पित किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो पहले बचपन के साल थे वापस आ गए। तो गुरुपा आई लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपने श्री चरणों में मेरे इस सत्संग को स्वीकार करें और मुझसे कुछ भी गलती होगी और सत्संग सुनाने में तो गुरुपा संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा सर्वत का भला करना अपनी हर संगत पर अपनी मेहर बरसाए रखना। जो आपकी संगत नहीं है उनकी भी रक्षा करना। सबको कष्टों से उभारना। सबसे पहले जो बहुत दुखी है उनके कष्टों को दूर करना गुरुपा और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमको किसी के भी सेवा का अवसर मिले तो हमें ज़रूर देना गुरुपा जिससे कि हम अपने कर्मों को सुधार सके। अगर जाने अनजाने में कोई भी गलत कर्म या गलत बात या गलत मनमानी कर्म और विचार से किसी को भी दुख पहुंचाया हो गुरुपा तो क्षमा का हमें क्षमा आपके श्री चरणों में क्षमा याचना की करते हैं गुरुपा और हमें क्षमा कर देना क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं। जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलत हो गया हो तो गुरुपा क्षमा कर देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए बरसाए रखना। जय गुरु जी। और आपको लिए मैं एक गाना एक जो छोटे से वो गाना चाहूँगी कि आप जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो चोरी मेरे दिल में समाते हो ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो तो ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे तो आप सब कुछ हो। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 2-3 प्लेटफॉर्म ते पहले भी कर चुकी है मगर मेरा कोई भी सत्संग अपना शेयर नहीं होया ते इस पिछे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਮੈਡਮ
ਆਪਣਾ ਮੈਂ 2014 ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਗਈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी, आपके लिए शब्द नहीं है। आप तो हर समय परमात्मा के चरणों में जुड़ाकर हम लोगों को रखती हैं। आप सोचिए आपको कितनी ब्लेसिंग गुरुजी की मिल रही है। अब आप ठीक हो ना? हेड्स ऑफ यू, लव यू। आप जन्म जन्मांतर मुस्कुराती रहना, चहकती रहना। गुरु पा को बहुत बहुत चरण स्पर्श। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, आप लोगों की सत्संग सुनने से बहुत कुछ गुरुजी के बारे में मालूम पड़ता है और हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और शिक्षा मिलती है। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, एक बार मुझे मेरे घर गुरुपा के घर में पंडित जी माता जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करने आते हैं। उनको मेरे सपने में लाए और उनका घर दिखाया। उनका बड़ा बेटा और उनका बड़ा पोता दिखाए। उनकी वाइफ सीढ़ी पर खड़ी थी। उनकी वाइफ में मेरे स्वर्गीय सासू जी को दिखाए। मुझे स्वप्न का मतलब नहीं समझ आया। ये तो गुरुपा जाने कौन सा कट छोटे में काटे हैं। लेकिन संगत जी, एक बात कहूँ, ये बात मैं सुबह पंडित जी से शेयर की। पंडित जी का 4 घंटे बाद फ़ोन आया और इतने खुश थे कि आपका स्वप्न सच हुआ। आज मेरी पन्ना सोने की अंगूठी जो 4 महीने से खो गई थी, किसी यजमान के गैरेज में पड़ी मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू। अंगूठी खोने पर बहुत मायूस थे, लेकिन अब बहुत खुश हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ऐसे ही मतलब इंसान एक को जोड़ते हैं, उसके पूरे घर को आप जोड़ लेते हैं। मैं कितना शुक्राना आपका करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुपा, आपने कहा तेरे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले तो हैं ना गुरुजी, अब तो आपने उन्हें जोड़ लिया ना। गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ही अपने दोइते की बहुरानी और उसके बच्चों को सबका आशीर्वाद आप ही देंगे और आज जीवन उन्हें मिलता रहे। उन्हें अपने हृदय से लगा कर रखना। मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ, तो आप अपनी बेटी की सुनेंगे। पूरी कायनात की रक्षा करते हैं आप। गुरुपा, अब कोरोना जैसी बीमारी किसी के घर में नहीं आए। वो तो आपके घर में आई थी, काल के रूप में आई थी। 3 जेंट्स को आपके चरणों में रख दिया, मेरे घर के 3 जेंट्स को। आप कहते हैं जब तक मैं तेरे नाल हूँ, दुनिया की ताकत तुझे हरा नहीं सकती। तेरा समय पलटने वाला है। जितना आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार शुक्राना। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से भी प्यारा मीत है। जन्म जन्म दी बिछड़ी में रंग से राजा हो गई। शुक्राना पा, शुक्राना।